Hello students, today I am going to start new chapter determinants. Determinants is the fourth chapter in NCERT book. Okay, and in the previous chapter we have studied matrices and algebra of matrices, and we have also learned that the system of algebraic expression can be expressed in a matrices form. Okay, system of linear equations like a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, we can express in a matrices form a1, b1, a2, b2. This is called coefficient matrix. Then xy variable matrix, and this also constant matrix, column matrix है but constant matrix. Okay, so इस फॉर्म में हमने इसको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्रेस करना सीखा कि कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं. And what do you think about its solution? It has a unique solution or not? Just recall. In 10th class, you had few conditions to recognize the given linear equations, pair of linear equations having unique solution or many solution or no solution. A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2. Then pair of linear equation is a system of linear equation having unique solution. Okay, इसी तरह if we have A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. It means it has infinitely many solutions. And third आपके पास था in which A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. It does not equal to C1 upon C2. It means no solution. तो ये अपने पास कुछ कंडीशंस थी जिस बेस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट यूनिकनेस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ linear equation, so it depends on this condition. Okay, and after solving we will get a1 b2 minus a2 b1 does not equal to 0. Okay, which is associated with the matrix this one. इसे अगर हम लोग यहाँ पे a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, सो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a वो आपका किसके थ्रू दिया जाएगा? ये जो आपको वैल्यू मिली a1 b2 माइनस a2 b1, ये किससे थ्रू एसोसिएटेड है? दिस माइनस a2 b1. ओके, सो ये वैल्यू जो है आपकी इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह के वैल्यूज इसमें हो सकती है. बट इन दिस चैप्टर या कह सकते हैं आपकी जो अपने पास सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे? रियल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे. जो भी कुछ होंगे अपने पास वो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? रियल. ठीक है, ओके. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अ मैट्रिक्स या कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जितने भी आपके जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो आपके किस मैट्रिक्स के निकाले जाते हैं? मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, डिटरमिनेंट जो भी होंगे वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू निकलेंगे. एंड विल स्टडी इन दिस चैप्टर अप टू ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के हम लोग डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स तो ये काफ़ी वाइड ज़्यादा है आपका इसकी जो रेंज है, जिसमें आपका आता है इंजीनियरिंग आता है, आपका इकोनॉमिक्स आता है, आपका सोशल साइंस आता है, एटसेट्रा. इसमें बहुत सारी फील्ड्स में इसके बहुत से यूजेस हैं. ओके, एंड इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट determinants
order 2, order 3, up to 3 I told you, and minor cofactors and adjoint and so many things we will learn in this chapter. Okay, so let's talk about determinants of, okay, and one more thing, determinant of A is represented by this symbol. Here this is not a modulus, okay, because we are talking about matrix. तो जब भी अपने पास अंदर की जो वैल्यू होगी वो अगर मैट्रिक्स है, इट मींस ये सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A, which is stated by A1 B2 minus A2 B1. आप देखेंगे कि ये कैसे मिला होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिला है. Okay, so let's talk about just determinant of order 1, order 2, order 3. How you get the determinant of matrix order 1 to 3. Suppose we have a matrix of order 1. तो आपके पास सपोज A दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, determinant of A or determinant of A is A. Okay, and we talk about a determinant of order 2. So let's take a matrix of order 2. A11, A12, A21, A22. A matrix of order 2. So how do you get the determinant of this matrix? अभी हमने निकाला था. So इसको हम फाइनली हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे. डिटरमिनेंट ऑफ A इज गिवन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको. A11 A22 माइनस A21 A1. ओके, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन देन माइनस इसका दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक आध हम लोग कर लेते हैं. ओके, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A which is 2 3 minus 1 and 5. So determinant of A is equal to 2 into 5 10, then minus 1 into 3 minus 3. Then you will get 13. Okay, let's take one more example. Suppose we have a matrix B minus 2 5 7 and then 0. Then determinant of B is given by into 0 is 0, then minus and 7 into 5 35. So this is minus 35. और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिन डिटरमिनेंट्स में या मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, a matrix whose determinant is does not 0, then this is called, this matrix is called non singular matrix and otherwise singular matrix. ठीक है, it means if a determinant of a matrix is equal to 0, it means A is singular matrix. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है. तो आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस केस में होंगे? अपने पास when the matrix is a singular matrix that you will have, yeah, it has a unique solution, otherwise ये आपका यूनिक या फिर मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन भी रख सकता है. आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ही सम्स है या आपके सिलेबस में. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स X 2 3 5 9.
So determinant of x is equal to 2 into 9, 18, then minus 5 into 3, 15. You get 3. Since the determinant of x does not equal to 0, it means x is a non-singular matrix. Okay. Now let's talk about determinant of a matrix of order 3. How will you get determinant of a matrix of order 3? Suppose we have a matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32. This is the matrix of order 3. How will you get the determinant of this matrix? Okay. So determinant of A is equal to, इसमें अपने पास जो डिटरमिनेंट होगा वो किसी भी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम के अलावा आपका डिटरमिनेंट निकलता है. ठीक है, आपको देखना क्या है. सपोज वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ ए अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट रो. ओके, सो हाउ विल यू गेट determinant of A? आपको करना क्या है? First you write A11, then इसे और इसे, जिसमें आपका एलिमेंट है A11, you have to hide that row and that column, and let's take a determinant of this these elements. ये आपको ऐसे लिख लेना है. ठीक है, then ये आपका जो है नेक्स्ट के लिए आपका माइनस आएगा एंड A12. अब ये माइनस क्यों आया? इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास एलिमेंट है वो आपके पास A11 है, तो जिसमें आप देखते हैं 1 + 1. इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इसके एक्सपेंशन में आएंगे उसके पहले कुछ आपको चीजें मैं बता दूँ. माइनर एंड cofactors. What is minor and cofactors? Suppose we have a matrix A of order 3. Okay, so if we talk about minor of A1, which is represented by n11, तो ये आपका होता क्या है कि जिसमें ये एलिमेंट होता है उस रो एंड कॉलम को आप हाइड करते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है. डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, A32 and A32. Okay, this is the minor of A1. If we talk about minor of A23, suppose we are talking about minor of A23, which is represented by M23, and ये जो आपका होगा वो कौन सी डिटरमिनेंट मिलेगी आपको इन एलिमेंट्स के लिए? Here is 2, 3 एलिमेंट, 2, 3 एलिमेंट लिए, तो आपको इस रो को और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा? हाइड करना पड़ेगा. जिसमें वो एलिमेंट है उसको आप हाइड करेंगे और जो भी एलिमेंट्स दिखेंगे उसको उसी ऑर्डर में रखना है. तो उनका जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी माइनर ऑफ 8. ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि इसका एक्सपेंशन में बात आ रही थी, तो जहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है वो कैसे आया वो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा. और सपोज यू हैव टू फाइंड माइनर ऑफ A, सपोज 2, 2, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M22, एंड अब आपके पास डिटरमिनेंट कौन सा आएगा? यू हैव टू हाइड. यहाँ पे काफी कुछ बन गया है, इसको मैं रब कर देता हूँ. A11,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32. Okay. So we are talking about minor of A22 means M22. Where is A22 element? This one. तो इस रो को और इस कॉलम को जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है, you have to hide that row and that column. So what is left? The remaining elements आपके जो बचेंगे उसको आप as it is रख लेंगे A11, A13, A31 and A3. जो भी रिजल्ट मिलेगा, you know how will you solve it? Because it shows determinant. तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपको कैसे मिलेगी? You know A11 into A32 minus A31 and then A12 और सपोज ये आपको निकालना है A22 तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. You know how will you get it? So A11 A33 minus A31 A1 इस तरीके से इनकी ये माइनस करेंगे. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, कोफैक्टर्स. व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर क्या है? तो ये देखिए किसी एलिमेंट के निकाले जाते हैं. सपोज वी आर फाइंडिंग कोफैक्टर ऑफ A11 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने माइनर निकाला है A11 के लिए, जो कि आपको मिलेगा क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इफ यू टॉक अबाउट कोफैक्टर ऑफ A11 then which is represented by C11 and value of C11 will be minus 1 to the power जो आपको लिखा है 1 plus 1 and इस एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा वो आपको लिखना है. ओके, इट मींस फाइनल जब आप करेंगे सिंप्लीफाई यू विल गेट minus 1 to the power 2 मतलब पॉजिटिव 1. ओके, and it means A22, A23, A32 and A33 मतलब जो भी माइनस आपका निकला था उसका साइन आपका किसके हिसाब से लेना पड़ेगा? जो उसकी पोजीशन. ओके, और पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे साइन कौन डिसाइड करेगा? ये देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ 2, 3 तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C23. ओके, एंड कोफैक्टर C23 की वैल्यू जो होगी -1 टू द पावर -1 टू द पावर ये जो आपको लिखना है तो सम करना पड़ता है 2 plus 3 and -4 2 3 जो आपको मिला है. इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये आपको हो गया 5 you know odd power that means it will be negative and इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो आपको मिलेगा फाइनली A11 A12 A31 and A32 जो आगे चल के सॉल्व होके मिलेगा. आगे बढ़ेंगे चलिए. ओके, एक और एग्जांपल फिर से देख लीजिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर्स ऑफ A22 which is represented by C22 उस केस में -1 to the power 2 plus 2 and minus of 2 ये आप इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा. इट मीन फाइनल जो फॉर्मूला आपको बनता है कोफैक्टर का वो आपका अगर लिखा जाए क्या लिखा जाएगा? कोफैक्टर्स फॉर एलिमेंट I and j column I2 and j column which is given by -1 to the power I plus j and minus of element ij. ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? कोफैक्टर्स के लिए. तो ये जो चीज आपके पास आ रही है वो आपको याद रखनी है कि प्लस माइनस किस बेस पे आ रहा है. ये वही दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A1. ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं. इसको अगर आप रिलेट करें सो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A along फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो इसको आपको लेना है तो एक एक करके करना. इस एलिमेंट की अगर बात करें तो A11 के लिए देन कोफैक्टर ऑफ
A11। कोफैक्टर ऑफ A11 यही होगा क्योंकि इनका सम क्या मिल रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। गॉट इट? ये अलग से मैं आपको साइन बता देता हूँ कि सपोज ये अपने पास A11 प्लेस है, A12 प्लेस है, A13 प्लेस है, दिस इज A21, A22, A23 एंड दिस इज A31, A32 एंड A33। आप पहले से ही इनके साइन समझ लें कैसे आ रहा है। 1 + 1 आपको -1 to the power 1 + 1 मीन्स 2, तो ये आपका कौन सा पोजीशन है, प्लस। इसमें आपके पास क्या आता है, साइन प्लस है। वी आर फाइंडिंग कोफैक्टर फॉर A12, तो 1 + 2 3, इट मीन्स -3, देन ये प्लस, देन अगेन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस। तो ये साइन पहले से ही डिसाइडेड है कि प्लस कब आएगा, माइनस पर और फिर प्लस कब आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्लस आपके पास था सबसे पहले, दैट पॉइंट वैल्यू इसकी, एंड देन कोफैक्टर, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11। फिर अब यहाँ चाहो तो आप माइनस बाद में रखते हैं, पहले रख लें। देन दिस एलिमेंट A12 एंड कोफैक्टर ऑफ A12 इज गिवन बाय माइनस, एंड माइनस क्या होता है इसमें, इसको आपको हाइड करना है, इसको हाइड करना है। देन A21, A23, A31 एंड A32 and one more element is left। इसमें आने के लिए फिर वही प्लस, एंड एलिमेंट इज A13 एंड देन माइनस। तो अगर इसके लिए बात करें तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करें, यू विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ A21, A22, A31, A32। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे हमने किसके अलावा निकाला है, फर्स्ट रो के अलावा निकाला है, क्योंकि जो भी डिटरमिनेंट निकलेगा ऑर्डर 3 के लिए डिटरमिनेंट्स का, मैट्रिक्स का, वो किसी न किसी सिंगल रो, चाहे फर्स्ट रो के अलावा निकाल दें, चाहे सेकंड रो के अलावा निकाल दें, या फिर थर्ड, और फर्स्ट कॉलम के अलावा निकाल दें, या फर्स्ट सेकंड कॉलम के अलावा, या थर्ड कॉलम के, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलावा ही आपका जो भी एक्सपेंशन होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए एक बार वापस बात करते हैं। ये था अलॉन्ग फर्स्ट रो, इसी को अगर मैं सेकंड रो में लिखूंगा, सेकंड रो सभी केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। डिटरमिनेंट ही है, चाहे आप उसको फर्स्ट रो के अलावा निकालें, चाहे सेकंड रो के अलावा, या सेकंड कॉलम के अलावा, या थर्ड कॉलम के अलावा, वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम रहेगी। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए फिर आप निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A अलॉन्ग सेकंड रो। चलिए अगर हम सेकंड रो की बात करें तो अपने पास आ जाएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड रो। सेकंड रो के अलावा निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट, वैल्यू से ही होंगी। सो डिटरमिनेंट ऑफ A, फर्स्ट आपकी एलिमेंट लेना है, या फिर 3 एलिमेंट्स है, तो A21, देन आई टोल्ड यू कोफैक्टर ऑफ A21, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस A22, देन कोफैक्टर ऑफ 22, देन प्लस A23, देन कोफैक्टर ऑफ 23। अब ये साइन है वो इसमें है, आपका जो साइन आया था वो कहां से आया था, इससे आया था, याद रखिए। ठीक है, तो अगर हम इसे रखना चाहें क्या रख सकते हैं, A21 एंड C21 आपके पास डायरेक्ट होता है, आपने माइनस के फॉर्म में भी लिखा है। कई बार सम आता है कि आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट आपका फर्स्ट रो या सेकंड रो के अलावा कोफैक्टर के टर्म्स में, या फिर माइनस के टर्म्स में, क्योंकि ये रिलेटेड है। इसी को हम माइनस के टर्म्स में जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास प्लस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा आपका, है ना, यहाँ क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। सो एक बार चाहो तो आप लिख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो -1 2 + 1 एंड देन M21
plus a to 2, then cofactor -1, 2 plus 2, and then m to 2 plus a to 3 minus 1 to the power 2 plus 3 and minus 2. देखिए ये मैंने कोफैक्टर के टर्म्स में लिख दिया है और इसी को मैंने माइनस के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। बट फाइनली आपको याद करना है कि ओवरऑल आपको डायरेक्ट जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे कि a to 1 आपको यही तो क्लियर हो जाएगा कि इसका साइन क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव a to 1 और इसके प्लेस पे आप डायरेक्ट क्या लिख दिया करोगे, कैसे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट a to 1, इससे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो को आपको हाइड करना पड़ेगा और आपके पास बचेगा क्या, ये एलिमेंट्स बचेंगे, इसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा a12 a13 a32 a33, ओके। देन यू नो ये आपका पास मिल रही है, पोजीशन आपको मालूम है, प्लस देन a22 एंड m22 मतलब a to 2, इसे आपको हाइड करना है, इससे आपको हाइड करना है, एंड यू विल गेट a11 a13 a31 a32, ओके। एंड नेक्स्ट 2 3 वैसे भी पता है, यहां से भी पता हो रहा है, ये आपका माइनस देगा a23 एंड m23, it means you have to hide third column and second row. You will get a11 a12 a31 a3। उसके बाद फिर पता ही आपको कि ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ये होता है, ठीक है। चलिए हम कुछ एक आध एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। ये तो एक आपका वो था जनरल वे में, ठीक है। लेट्स सी कैसे करना है। Suppose we have a matrix of order 3, 1, -3, 2, 2, 5, 1, 0, 3, 2. Okay? This is the matrix of order 3. चलिए एक ही करके हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट विल फाइंड डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। ये मैं सभी के लिए निकाल के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सभी में वैल्यू सेम आनी है, लेकिन जब भी आप किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस रो के लिए निकालें, किसी एक रो की या फिर किसी एक कॉलम, ये आपको डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि एक करके किस फॉर्म में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अलोंग फर्स्ट। सो द डिटरमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो, ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, ओके। सो वी हैव टू राइट दैट एलिमेंट एंड माइनस, इसको ऐसे लिख लेना बेटर होगा। इसको आपने क्या, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, सो यू विल गेट 5 1 3 2, ओके। यहाँ पे आप चाहें तो अलग से साइन लिख लें, पहले प्लस देन माइनस देन प्लस, बाकी और भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन माइनस एंड अगेन यू हैव -3 देन माइनस ऑफ, यू हैव टू हाइड दिस कॉलम एंड this row, you will get 2 1 0 2, okay. And similarly for third element, plus sign and plus 2 you have, so for 2 you have to hide this column and this row, you will get 2 5 0 3, okay. Now you have to solve it, so one बनाएगा कोई दिक्कत नहीं। Cross multiplication, because this is of order, this is the matrix determinant of order 2, 5 to the 10, then minus 3 over 3, okay, minus minus plus 3, but ये into है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, choose a 4, then 0 into 1 is 0, plus 2,
6 then 0. Okay, याद रखना है सिस्टम मल्टीप्लिकेशन होना है क्रॉस. So 7 plus 12 plus 12, 24 and 7, 31. So 31 is the value of determinative. Okay, and suppose you are finding along second row. सेकेंड रो के अलावा निकालना है तो देखिए एक बार कैसे आएगा. साइन आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका चल रहा है, ये आपका साइन आ जाएगा. सो फर्स्ट इट राइट माइनस एंड वी आर टेकिंग along second row, then 2 and determinant of. अब इस 2 की बात करें तो इस रो को और इस कॉलम को आपको हाइड करना है. देन यू विल गेट -3 2 3 2, देन प्लस साइन आएगा आपका. ठीक है, 5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 5 इसको आप हाइड करना है, और बीच वाले में जिसमें ये एलिमेंट है दैट को एंड दैट कॉलम यू विल गेट 1 2 0 2 1 2 0 2, and then last one sign minus minus 1. Okay, and 1 के लिए आपको ये कॉलम राइट करना है, और सेकेंड रो you will get 1 minus 3 0 3 1 minus 3 0. Done. See, -2 in bracket you will get -6 minus 6. Okay, इसका मल्टीप्लिकेशन -6 देन माइनस फॉर्मूला और देन 3 into 6 प्लस 5 in bracket 2 minus 0 minus 1 then 3 minus 0, then -2 into minus 12 plus 10 minus 3 positive 24 plus 10 minus 3, it means 30. Okay, oh sorry, क्या था आपके पास 2 5 1 माइनस. ओके, चलिए ये अपने पास वैल्यूज थी. अब निकाल लेते हैं अलॉन्ग. किसी के कॉलम के लिए चेक कर लिया. अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू वी आर फाइंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम. साइन लो प्लस है, देन माइनस के लिए है, देन प्लस के लिए. सो 1 देन 1 के लिए this row and this column you have to hide. What is that? 5 1 3 2. Okay, then sign is minus and you have to write 2 for 2 lies on second row and first column. तो आपको इस रो को और फर्स्ट इसको कॉलम को हाइड करना है. You will get -3 2 and 3 2. Then sign is plus 0 कोई डिटरमिनेंट चलिए करते हैं 0 के लिए. For 0 you have to hide this row in this column. -3 2 then 5. So 1 है 10 minus 3 minus 2 minus 6 and then ये आपका जो भी रिजल्ट आएगा इस 0 की वजह से क्या हो जाएगा 0. So again we got 7 plus 24 31. Result is same.
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी है और ये आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का भी तरीका है और ऑर्डर 3 इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और कि ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि सो टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट और ये कैसे हुआ एप्लीकेशंस आपको समझ में आई एंड आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ओके, एंड माइनस कोफैक्टर्स, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई, रिलेटेड समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके, सो